abhi, I'm looking into option chain of Bank Nifty, and as per option chain of Bank Nifty, it has got 38,500, which is going to be the major resistance. But above that 38,500 level, there is no barrier available for Bank Nifty. That means, in the option chain, there is nothing big written on option chain as of now. And on the lower end, the biggest area below which there is no support, that is basically 37,500. So as of now, till yesterday, market participants were expecting that market should be able to trade within, broadly within, this range of 37,500 and 38,500, and market actually traded within this range only. By day end, market ultimately gave a closure anywhere around 38,000 only. And this is what has happened yesterday. But today it is a budget day, and there is definitely going to be wild moves that will be coming in the market. There will be big move, there can be a big move on the upside, there can also be a big move on downside. So be careful on this part. Do not create your position blindly just because it is a budget day and you want to make big money. If you'll be making your trading decision like that, there might be possibility that you might end up into having bigger losses also, right? Because options, they will be going highly volatile today, right? The current expiry options, currently their theta has not yet started acting on them. Their option value has also not yet depleted. Whatever that will happen, it will start happening from tomorrow onwards. Once the budget portion is over, tomorrow onwards, you will be finding that options are getting their theta value depleted like anything. So it is always better, if you are creating your position, do not be in a hope that you will be recovering. If at all you get the losses and you are holding your position for expiry day, then you might end up into having even bigger losses, because today the implied volatility will be very high in options, and this volatility will get crushed by the next day, right? Next day ये volatility crush हो जाएगी, and option के volume, option की जो value है वो extrinsic value वो deplete होगी like anything, right? So as of now, let me also log in into my terminal. All right. So as of now, Nifty is trading on the higher level only. This is what it looks like. All right. So Bank Nifty, it is also opening gap up 485 points, 1.28%. Let me give you update on all the indices. Nifty 50 is opening 1% gap up, 189.86, 189.6 points. Gap up opening it is giving. Nifty next 50 is opening 0.8% gap up. And when we talk about other indices like Nifty IT is opening 1.47% gap up. Nifty Bank is opening 1.28% gap up. Nifty 100 is opening 1.05% gap up. Nifty Mid Cap 100, it is opening, Nifty Mid Cap 100 is opening 0.98% gap up. Mid Cap 50 is opening 1.03% gap up. Nifty Infra is opening 0.80% gap up. Nifty Media is opening 0.98% gap up. And when we talk about FII and DII activity, in the last trading session, FIIs, they were again net sellers with selling of 3,624.48 crore. But at the same time, DIIs were also net buyers with buying of 3,648.65 crore in equity market. So the DII, they again gave the cushion to the market, and the market ultimately, today it is opening gap up. In terms of biggest gap up opener today, it is going to be Nifty IT, actually Nifty IT as well as Nifty India Digital. So these are the two sectors which are opening with a very good gap. Nifty India Digital is basically another index of Nifty. The composites are all of them. This is IRCTC, Mindtree, Coforge, Naukri. Wow, Naukri पहुंच गया अपने लेवल पे. Talk about tick scanner. Right now there is 38,300, 38,500 कॉल ऑप्शन यहाँ पर बाइंग दिखाई दे रही है, बट मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट तो अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, राइट? देयर इज नॉट अ बिग मूवमेंट दैट इज हैपनिंग इन द मार्केट एज ऑफ नाउ. सो बट एचडीएफसी बैंक के अंदर देयर इज अ ह्यूज लॉट्स ट्रेडिंग दैट इज टेकिंग प्लेस. 1500 रुपए के प्राइस पर एक्सेसिव लॉट्स की बाइंग हो रही है इन केस ऑफ HDFC Bank. Let me show you the chart of HDFC Bank.
and maybe this is the stock which can come out, HDFC Bank. So maybe this can be a stock which has the potential to start moving up today. So this is going to be one major question for today. And let me also see the HDFC Bank's futures chart. So this is futures chart of HDFC Bank. Prices have opened gap up. They have again come down. Okay, so let the first 5 minutes get closed. There might be a possibility that above 1511 HDFC might start giving a blast on the upside. अभी immediate basis पर इसमें decision नहीं बन सकता because the candle is a red candle. Although in this red candle there is a buying that is taking place right now. So we can wait and watch. Let me see who else has joined. Vijay has also joined. Vijay, very good morning. कैसे हैं आप? And let me also see if Shubham has also joined. Okay, so Shubham has also joined. Very good morning, Shubham ji. कैसे हैं आप? So ये है overall market. हाँ बोलिए. I'm fine, sir. How are you? All good. Okay, so हाँ बताइए. आप बताइए पहले, मैं उसके बाद बात पूरी करूंगा. नहीं सर, मेरा हो गया. क्या आपने ट्रेड खत्म कर दी अपनी ट्रेड? वाओ, बैंक निफ्टी के अंदर वॉल्यूम देख रहे हैं पहले 5 मिनट में. और यही वॉल्यूम है ना, ये कभी कभी वो भी हो जाता है, लोगों को 43,000 नेगेटिव डेल्टा से 39,000 पॉजिटिव डेल्टा कन्वर्ट हो चुका है बैंक निफ्टी के अंदर फर्स्ट 5 मिनट के अंदर. एंड व्हाट इज हैपनिंग इन निफ्टी? ओके, सो निफ्टी अभी न्यूट्रल चल रही है फिलहाल. निफ्टी में अभी कोई बहुत बड़ी बाइंग और सेलिंग नहीं हो रही है. निफ्टी इज रनिंग ऑन द न्यूट्रल एंड एज ऑफ नाउ. बट यस, जितनी भी बड़ी सेलिंग हुई थी वो पूरा सेल ऑफ अब्सॉर्ब हो रहा है निफ्टी के अंदर. और जो रिंग्स आपको ये बेल्स आपको बजती हुई दिखाई दे रही है, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी. और कुछ स्टॉक हैं जिनमें बेसिकली अभी इस वक्त अच्छा बुल मोमेंटम आ रहा है. दैट इज बेसिकली एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक के अंदर अगर आप देखेंगे, द कैंडल इज मेकिंग अ वेरी बिग वॉलेटाइल कैंडल. 773 के लो से 782 तक 10 रुपए का मूवमेंट पहले 5 मिनट के अंदर ही दे रही है. और इसके अंदर बहुत अच्छी बाइंग हो रही है एक्सिस बैंक के अंदर. दूसरा जो स्टॉक अगर हम देखेंगे यहाँ पर, दैट इज गोइंग टू बी बंधन बैंक, which has also broken previous days low, but again buyers are back in the market. And this one is also gaining lot of upside movement as of now. And my position right now is running at वही सेम चल रहा है. अभी भी 68,000 ही चल रहा है इसमें. प्रॉफिट दैट इज 39,000 कॉल ऑप्शन जो मैंने बहुत पहले लिया था. और इस ऑप्शन के अंदर, एज आई टोल्ड यू दैट इफ यू ऑल रिमेंबर, मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर मेरा टारगेट है लगभग 600 रुपए के आसपास का. अगर 600 के आसपास पहुंच जाएगा तो आई विल बी डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बुकिंग प्रॉफिट इन इट. और अभी इसका प्राइस चल रहा है ऑप्शन का 490 के आसपास, राइट. तो अभी लगभग 100 रुपए और बाकी हैं. 100 रुपए जब वो मिल जाएंगे तो आई विल बी बुकिंग प्रॉफिट अकॉर्डिंगली इन इट, राइट. आई एम नॉट लुकिंग फॉर 600 700 का टारगेट, वैसा नहीं देख रहा हूं मैं. बट यस, अभी तो 500 का लेवल बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया है और निफ्टी ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है 500 का लेवल, राइट. सॉरी, 17,500 का लेवल अभी निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है. तो इट इज अ वीक कैंडल मेड बाय निफ्टी एज ऑफ नाउ. पहले 5 मिनट में निफ्टी ने बहुत वीक कैंडल बनाई है. और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी ने एक शेडो कैंडल बना दी है. I don't believe that Bank Nifty is going to give a big blast right now itself. I don't believe it. Why? Because right now market participants सिर्फ options, put option के जो buyers हैं सिर्फ उन्हीं को बाहर कर रहे हैं फिलहाल मार्केट से. और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, let me show you. अभी मार्केट में बहुत ज्यादा बुल पोजीशन नहीं है. एक मिनट, यहाँ पर भी अभी प्राइस चार्ट्स अभी अपडेट नहीं होना शुरू हुए हैं. पहले 5 मिनट तो हुए हैं. हाँ, सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि 39,000 जो कॉल ऑप्शन है, या यहाँ पर अभी भी बहुत बड़ा बैरियर बना हुआ है 39,000 कॉल ऑप्शन पर. और मार्केट का अभी बैलेंस ब्रेक नहीं हुआ है बिकॉज 38,500 पर भी अभी राइटिंग बढ़ी हुई है फिलहाल, राइट. यहाँ पर भी राइटिंग बहुत अच्छी है. बट अगर बैंक निफ्टी ब्लास्ट दे देगा तो उसमें हमें कोई बुराई नहीं है, राइट. अगर यहाँ से ब्लास्ट दे दे 38,600 तक पहुंच चुका है,
अगर ये यहाँ से 700, 800, 9000 भी पहुंच जाए, 39,000 से ऊपर जाते जाते 39,200, 500, मैं तो कहता हूँ 40,000 तक पहुंच जाए बैंक निफ्टी, आई विल बी गेनिंग वेरी गुड प्रॉफिट देन, राइट? बट दैट्स नॉट द पर्पस। अभी कुल मिला के जो मैं बोलना चाह रहा था, दैट इज let me have a look into what is happening with the stocks that I was telling. Havells. Let's have a look into Havells. आज निर्मला जी कब आएंगी? Any idea what time निर्मला जी will be coming? 11 o'clock sir. 11 o'clock. तो 11 बजे तक मार्केट म्यूटेड रहेगी, ये तो मेरे को लगता है अभी तक। ऑलराइट, सो Havells पहले 5 मिनट में नीचे ही गिरा है इस पे, लेकिन फिर भी नजर रखिए, मैं अभी भी बोल रहा हूं इस पर नजर रखिए। पहले 5 मिनट में बहुत अच्छी सेलिंग हुई है Havells के अंदर। सर नवीन फ्लोरीन, Let me have a look into Navin Fluorine. अरे यार ना, टिकर चलाना जरूरी है मार्केट के ऊपर ना। कौन से स्टॉक्स नए हाई नया लो बनाते जा रहे हैं। नवीन फ्लोरीन में पहले 5 मिनट में बहुत अच्छी बाइंग हुई है एक्चुअली। दिस कैन बी अ पोटेंशियल स्टॉक डेफिनेटली। First 5 minute is carrying very high volume. Second 5 minute is carrying selling, but that selling is also again not that high. अब मैं क्या करूं, इसमें प्रॉफिट बुक कर लूं 600 रुपए पर? मेरे को ये लग रहा है। सर पूरा मत बुक करो। मैं तो यही सोच के बैठा हूं कि छोड़ ही देता हूं एक्सपायरी डे तक, पर मैं एक्सपायरी डे तक छोड़ना नहीं चाहता। मेरा शुभम, आपसे मैंने 2-4 दिन पहले, जब 5-6 दिन पहले हमने फोन पर बात करी थी, आई टोल्ड यू ना, दैट इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज। और तब तक मैं होल्ड ही करके रखा हुआ है। आज जब पोजीशन अगर रन कर रही है ना प्रॉफिट में, तो एज आई टोल्ड यू, दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज, दैट प्राइस शुड बी एबल टू रीटेस्ट 39,000 लेवल वन मोर टाइम। 39,000 को एक बार फिर दोबारा से प्राइसेस को रीटेस्ट करना चाहिए। पहले 10 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी में एक्सेसिव बाइंग हुई है, लाइक 43,000 सेलर्स को अब्सॉर्ब करके 77,000 डेल्टा बनाया पहले 5 मिनट में, और सेकंड 5 मिनट में अगेन डेल्टा इज गोइंग वेरी हाई, नॉट इवन अ सिंगल सेलर। सेकंड 5 मिनट इज अगेन कैरिंग नेट बाइंग। इतना ज्यादा अगर बुलिशनेस मार्केट में रहेगा तो वेयर आर द बियर्स? बियर्स को तो बाहर कर रही है मार्केट बहुत बुरी तरह से, राइट? सो आई थिंक पुट ऑप्शन में तो अभी फिलहाल पोजीशन बनाना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। अगर कोई पुट ऑप्शन बाय करके या होल्ड करके रखना चाहता है, आई हैव बीन टेलिंग ऑल ऑफ यू फ्रॉम पास्ट मेनी डेज दैट माय व्यू इज बुलिश एंड आई एम होल्डिंग कॉल ऑप्शन, राइट? सो अभी भी मैं होल्ड ही कर रहा हूं अपना कॉल ऑप्शन, मैंने छोड़ा नहीं है उसको। तो दैट्स व्हाट इट इज गाइस। मेरा तो अभी भी एक्सपेक्टेशन बुलिश ही है, और अगर मार्केट और ऊपर जाती है तो और अच्छा है, इट इज वेल एंड गुड फॉर अस। उसके अंदर अभी मेरा टोटल मैंने इसमें बुक कर तो लिया है, पर ये तो मेरे ऑलरेडी लिमिट ऑर्डर थे। टोटल इन टोटल इसमें पहले से ऑर्डर लगा के रखे हुए थे, और वही बेस्ड अपॉन दैट व्यू ओनली, इसी व्यू के ऊपर बेसिकली मैंने पोजीशन बनाई थी। मार्केट भले ही ऊपर जा रही थी, लेकिन ये लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप बैठी जा रही थी। तो व्हाट आई डिड, मैंने अपनी पोजीशन को थोड़ा कुछ इस तरीके से बनाया कि कुछ क्वांटिटी मैंने 39,000 पुट ऑप्शन में ले ली, कुछ क्वांटिटी मैंने 38,700 पुट ऑप्शन में ले ली, और उसी के साथ ही 12,000 और 8,000 बुक कर लिया। तो दिस इज डन। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं क्या मूव आ सकता है। सेल ऑन राइज ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, एंड आई वाज लकी ऑन दिस पार्ट आल्सो कि मार्केट के मूव ऐसे होते हैं, जब होते हैं तो ऐसे ही होते हैं। और ये ऑप्शन से भी कुछ अगर आप देखो, लर्निंग पार्ट अगर देखेंगे ना यहाँ से विजय और शुभम, क्यों ऑप्शंस के डेल्टा और इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आप यहाँ से देखो, ये थे मॉर्निंग के सेलर, ठीक है? These were the morning
दीज वर द मॉर्निंग सेलर, इनको पहली बार आउट करा गया इस कैंडल में जिसमें था बहुत बड़ा डेल्टा, राइट। उसके बाद प्राइस ने यहाँ से नया लो बना दिया। व्हाट इज हैपनिंग विद द डेल्टा? क्या डेल्टा यहाँ से कम हो रहा है? नहीं हो यस रहा। सर। तो सेकंड टाइम अगेन इनको यहाँ से बाहर किया, मार्केट में डेल्टा बढ़ गया इस बार। देन अगेन न्यू लो मेड बाय द प्राइसेस, और इस बार जब ये दोबारा से नया लो इस प्राइस के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पर मैंने तब आप लोगों को अपडेट दिया कि मार्केट में नीचे गिरावट ही आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो मैंने इसी प्राइस के पास मैंने नेकेड बाय करके छोड़ दिया विदाउट स्टॉप लॉस, बट मैंने टारगेट हायर प्राइस पर यहाँ पर कहीं पर रख दिया था, और अल्टीमेटली प्राइसेस ने यहीं कहीं आसपास मैंने इसका टारगेट रख दिया था, और दोनों ऑर्डर्स के मैंने पहले ही लिमिट में लगा के छोड़ दिया था कि अगर लॉस होगा तो अच्छा होगा। ऑलरेडी 73,000 इसमें बुक कर लिया प्रॉफिट, तो लॉस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और प्रॉफिट होगा तो ऑल्दो अब ये यहाँ से बहुत अच्छा ब्लास्ट कर रहा है, नीचे की तरफ ही गिर रहा है, और लेट्स सी और कितना गिर सकता है। अभी तो यहाँ से इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम आ रहा है। विजय, आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, पुट ऑप्शन बाय करा है कोई? हाँ 37,500 पुट ऑप्शन। 37,500 पुट ऑप्शन तो काफी डीप है। हाँ वो तो वही सस्ता भी मिल रहा था सर। कितने में लिया आपने? 250। राइट। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे देता हूं कैसे आपको ट्रेड करना है। यू कैन मार्क दिस एरिया, आप इसमें ना रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं। अगर 50 to 60% रिट्रेसमेंट टॉप से लेकर बॉटम में, so this is going to be 50 to 60% of retracement, so highly likely possibility ये है कि प्राइस 61% रिट्रेसमेंट को ब्रेक देखो इस दिन कर देता है। ये बजट डे है, बजट डे में जितना बड़ा बियर मूव दिया उतना बड़ा बुल मूव भी देगा, राइट। सो वो सिनेरियो दोनों रहेंगे मार्केट में, जितना नीचे गिरा है उतना ऊपर भी जाएगा। तो यहां से देखिए, अगर आप देखेंगे इस कैंडल के अंदर, अकेली कैंडल के अंदर कितने सारे पुट बायर्स को उन्होंने अट्रैक्ट किया, और उसके बाद फिर दोबारा से उनको बाहर कर दिया, राइट। एक बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना शुरू होगी। दिस इज द रियल हीट ऑफ दिस थिंग, दिस इज द रियल हीट ऑफ बजट डे। और इस दिन नेट प्रॉफिटेबल बहुत कम लोग हैं जो बन पाते हैं। आई विल कॉल माई सेल्फ लकी टूडे टू गेट द प्रॉफिट, बिकॉज रिस्क वाली पोजीशन थी। रिस्क तो लेकिन मेरा बहुत ज्यादा था उस टाइप से देखा जाए तो लेकिन रिवॉर्ड भी मैंने लिमिटेड ही रखा हुआ था। मतलब यहाँ पर मैंने दोनों ऑप्शन में मैंने 100 पॉइंट का रिस्क रखा हुआ था, 100 पॉइंट्स का रिस्क रखा हुआ था दोनों ऑप्शंस में, 38,700 में भी और 39,000 पुट ऑप्शन में भी, दोनों में। तो अब कुल मिला के अब आपको बेसिकली ये ले लीजिए कि मोस्ट प्रोबेबल एरिया है जहां पर मुझे लगता है कि मार्केट कैन हाईली लाइकली गिव अस सम सॉर्ट ऑफ एंट्री। इट इज गोइंग टू बी 38,400 से लेके 500 के बीच का एरिया, राइट। यहाँ पर मार्केट दोबारा से आ जाती है ना, तो और मोर ओवर इधर गैप भी बैठा हुआ है अभी। इस गैप को मैं देख रहा हूं कि इस गैप को, इंट्राडे गैप तो जनरली बैंक निफ्टी फुलफिल कर देता है, पूरी तरह से फिलिंग कर देता है उसकी जनरली। और अगर बैंक निफ्टी यहां से इसको वापस से ऊपर पहुंचता है 440 से लेके 500 के आसपास इस एरिया में, और रिजेक्शन कंफर्मेशन मिलती है, तो शायद पॉसिबिलिटी होगी बहुत अच्छी कि बैंक निफ्टी आपको एक अच्छा मूव दे देगा वहां से अगेन डाउन साइड में। बट अगर ये गैप फिलिंग नहीं करता, नीचे ही लगातार गिरता जाए, तो व्हाट कैन बी डन? नथिंग कैन बी डन। कल के डे का इतना जरूर है, if not today, tomorrow definitely there should be some more option value depletion that should take place in the market.